Good morning, student. Stay home, stay safe. Now, this day, time discuss the new topic: types of warming up. First, passive warming up. The main aim of passive warming up is to increase the body temperature without performing any physical activity. In passive warming up, the body temperature is increased usually by external means such as by wearing heavy uniform, massage, hot water, steam, sunlight, hot drinks, etc. Performing passive warm-up by these means in beneficial because there is no expenditures of energy in the process of warming up. However, active warming up is necessary for getting good result along with passive warming up. इन द सेंस पैसिव वार्मिंग मीन्स ऐसे वार्मिंग अप्स किया जाए जिसमें फिजिकल एक्सरसाइज इन्वॉल्व ना हो, तो इसीलिए उनका सन बात किया जाए, सनलाइट में जाके कर लिया जाए, जो है खड़ा हो जाए, आप उससे कर सकते हैं। हैवी क्लोथ्स पहन लीजिए जिससे आपकी बॉडी वार्म हो जाए। तो ये सब वार्म वाटर से आप आप बाथिंग कर लीजिए, स्टीम बाथ ले लीजिए। तो ये सारे या तो जो हॉट ड्रिंक्स ले लीजिए। तो ये सब पैसिव वार्मिंग अप के एग्जांपल्स है जिसके थ्रू हम अपनी बॉडी को वो इंटरनल वार्म अप करते हैं विदाउट एनर्जी लॉस किए हुए। जब आप रनिंग करेंगे तभी आपकी बॉडी होगी, स्ट्रेचिंग बेंडिंग करेंगे। यहाँ आपको रिसोर्सेस को यूज़ करना है, इसीलिए इसको पैसिव वार्मिंग अप बोला जाता है। एक्टिव वार्मिंग अप। In active warming up, a sports person take part in various physical activities. These activities increase her working efficiency. Muscles are toned up. The temperature of body increase up to the required level. Jogging and stretching exercise are included in such types of warming up. There are two types of activity warming up, that is general warming up and specific warming up. These are described below. First, general warming up. General warming up is usually performed in all types of activities. These types of warming up include jogging, running, jumping, stretching, calisthenics, striding, wind sprint, and other general exercise. It increases coordinative ability and flexibility of muscles and joints. It also improves muscle tone. The duration of general warming up depends upon the nature of work to be performed. इट मीन्स कि जो जनरल वार्मिंग अप होता है, सामान्य वार्मिंग अप, इसमें हम जो है फ्री हैंड एक्सरसाइज करते हैं। इसमें किसी तरीके की एक्सरसाइज हो सकती है, चाहे वो जॉगिंग हो सकती है, रनिंग हो सकती है, जंपिंग, स्ट्रेचिंग मीन्स खिंचाव वाले व्यायाम, कैलास्थेनिक्स, स्ट्राइडिंग, विंड स्प्रिंट, जनरल पीटी एक्सेट्रा। मीन्स किसी भी तरीके से फ्री हैंड एक्सरसाइज करके हम अपने क्या करते हैं, अपने बॉडी को क्या करते हैं, टोन अप करते हैं। यहाँ एक चीज़ डेवलप होती है कोऑर्डिनेटिव एबिलिटीज़, और हमारी मसल्स में और हमारे जॉइंट्स में यहाँ फ्लेक्सिबिलिटी ये जनरल वार्मिंग अप करने से बढ़ती है। और हमारी जो मसल्स होती हैं वो हाफ टोन अप के सिचुएशन में आ जाती हैं, मीन्स हाफ टोन हो जाती हैं, जिससे उनको अपना वर्क करने के लिए, मीन्स मेन वर्क करने के लिए उनको ज़्यादा एक्टिव हो जाती हैं। जनरल वार्मिंग अप लाइक दिस: स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज, कैलास्थेनिक मीन्स पीटी एक्सरसाइज, जॉगिंग एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और जनरल वार्मिंग अप के थ्रू फिर हम क्या करते हैं, डायरेक्टली हम गेम में प्लेट कर सकते हैं। फिर अब सेकंड पढ़ना है स्पेसिफिक वार्मिंग अप। इन स्पेसिफिक वार्मिंग अप एक्सरसाइज आर डन विथ implements. Special exercise are performed which have direct relationship with the activity to be done. These specific exercises are performed after the activities of general warming up. Specific types of warming up differs from activity to activity or game to game. For example, a sprinter may take few start and run for short distance before the actual competition. A basketball player may practice for layup shot for free throw before the competition. These types of warming up improves the coordinative ability. In fact, it specific warming up, the main stress
is laid down on the practice of various skills to be performed in the game. The exercise which are usually performed in specific warming up are described subsequently according to the concerned game. विशिष्ट वार्मिंग अप मीन्स स्पेसिफिक वार्मिंग अप का इम्पोर्टेंट इम्प्लीमेंट जो है, जो जो आप स्पोर्ट्स खेलते हैं उससे रिलेटेड इक्विपमेंट्स के थ्रू क्या करना, वार्म अप करना। स्पेसिफिक वार्मिंग अप को आपको ध्यान में रखना है कि स्पेसिफिक वार्म अप वह वार्म अप होता है, उस तरह की एक्सरसाइज होती है जिसमें स्पेशल इक्विपमेंट के थ्रू, स्पेशल इक्विपमेंट जिस गेम को आपको खेलना उस गेम से रिलेटेड आपको क्या करना चाहिए, वार्मिंग अप करना चाहिए उस इक्विपमेंट के साथ। इसीलिए एग्जांपल्स दिया गया है कि अगर आप बास्केटबॉल खेलते हैं तो बास्केटबॉल के साथ जो है जो है शूट लेते हैं, या लेअप शॉट की प्रैक्टिस कर लेते हैं, ड्रिबलिंग कर लेते हैं। बैडमिंटन में आप देखते हैं रैली चला लेते हैं, उसी तरीके से टेनिस में, लाल टेनिस में। तो इस तरीके से क्या करते हैं, क्रिकेट में आप देखते हैं जब लोग बॉलिंग करने आते हैं उसके पहले ही अपने हैंड्स को क्या करते हैं, वार्म कर लेते हैं, मीन्स हैंड्स को जो है राउंड कर लेते हैं, प्लस स्ट्रेचिंग कर लेते हैं, प्लस जो बॉलिंग बॉलिंग अपने फ्रेंड्स के पास, अपने प्लेयर साथी के पास भेज के जो है प्रैक्टिस कर लेते हैं, जिससे उनको फिर प्रॉब्लम ना हो। तो कुछ एग्जांपल्स दिए गए हैं, उसको देख लें। क्रिकेट, बॉलिंग, कैचिंग, बैटिंग, फील्डिंग एक्सेट्रा देखते हैं बिफोर द मैच। ये सारी चीज़ें आपको आईपीएल आप देखिए कंडीशनिंग करते हुए लोग मिल जाएंगे। बैडमिंटन में फॉरवर्ड बैंडिंग, साइडवर्ड बैंडिंग, बैकवर्ड बैंडिंग, बॉडी ट्विस्टिंग एक्सरसाइज एक्सेट्रा। बास्केटबॉल में ड्रिबलिंग, शॉटिंग, लेअप शॉट, शटल रन, डॉजिंग, थ्रो एक्सेट्रा। लॉन टेनिस, वॉल प्रैक्टिस, सर्विस प्रैक्टिस, पासिंग शॉट्स, knocking etc. Shot put में shifting the shot from left hand to right hand and vice versa. Standing throw, putting that shot with both hands. Gliding practice with or without shot etc. Hockey, dribbling, rotation of sticks, stopping the ball with sticks, short passes, long hits, scoop etc. तो ये सम एग्जाम्पल्स हैं जिसकी स्किल्स की हम क्या करते हैं, स्पेसिफिक वार्मिंग अप जब करते हैं तो इन स्किल्स की हम लोग क्या करते हैं, वार्म अप में प्रैक्टिस करते हैं विथ इक्विपमेंट्स, जिससे उस गेम के लिए हम लोग रेडी हो जाते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।